Hello, friend. Good morning. Myself, Mr. PG Paviskar, I would like to welcome you in the presentation of Class 9 Mathematics. Your chapter is Lines and Angle. In a previous session, we already seen basic terms of geometry, that is a line, segment, ray, then pair of angles, types of angles, we already seen. In the continuation of this topic, we are going to study what in by intersecting lines and non-intersecting lines. Intersecting line और non-intersecting line क्या होता है? If we draw the lines in a plane, then there are two possibilities. One is if we draw two lines on the same plane, then the line may be intersecting line, and another possibility the lines may be parallel. So these are the two possibilities. If you draw the different lines, so here these two different lines PQ and RS are drawn on the paper. You will see that can draw then into two different way. So in figure 1, these two lines are intersecting line. In figure 2 here, two lines are parallel lines. तो ये दो पॉसिबिलिटी, यदि दो लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो एक तो दो लाइन इंटरसेक्टिंग हो सकती है या नहीं तो पैरेलल. पैरेलल मीन्स डज नॉट इंटरसेक्ट एनीवेयर. ओके. The extend recall the notation of lines that it extend indefinitely in both direction. ये लाइन का मतलब लाइन दोनों इंड में एरो है. एरो का मतलब क्या होता है? इट एक्सटेंडेड इंडेफिनेटली ऑन बोथ डायरेक्शन. दोनों डायरेक्शन में वो इंडेफिनेटली हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं. लाइन का मतलब line PQ and RS are intersecting. In a figure 1, these two lines are intersecting line, and in figure 2, PQ and PR are PQ and RS are a parallel line. Now, the length of common perpendicular at different point on this parallel line is the same. ये जो parallel line है, ये दोनों पैरेलल लाइन है. ये पैरेलल लाइन के बीच में हम लोग यदि दोनों लाइन को परपेंडिकुलर लाइन निकालता है, यहाँ पे ये PQ को भी पैरेलल है और RS को भी, सॉरी परपेंडिकुलर है, नॉट पैरेलल. दिस लाइन is a perpendicular to PQ and also perpendicular to RS. So this is called a perpendicular distance between two lines. ये दोनों लाइन में से ये जो लेंथ है उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर. ओके. और दिस इज अ परपेंडिकुलर बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, एंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस इज द सेम. हम लोग कहीं पे भी परपेंडिकुलर लाइन यदि ड्रॉ कर दे ये दोनों पैरेलल लाइन में, तो हर एक पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस इज द सेम. क्या होगा? सेम होगा. ओके. इज द सेम. एंड दिस इक्वल लेंथ इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. और ये जो इक्वल लेंथ है उसको बोलते हैं लेंथ distance between the two parallel lines. This is called the length between the two parallel line. और वो कांस्टेंट होता है, सेम होता है, इक्वल होता है. ओके. और ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग करते हैं एक दूसरे को. इसका मतलब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है. पॉइंट सपोज O, तो ये जो वो पॉइंट है वो PQ का भी पॉइंट है और RS का भी पॉइंट है. इसका मतलब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये दोनों लाइन का क्या होता है? कॉमन पॉइंट होता है, सिंगल कॉमन पॉइंट होता है. इंटरसेक्टिंग लाइन है वो कॉमन पॉइंट, एंड दिस कॉमन पॉइंट इज अ इंटरसेक्टिंग पॉइंट. लेकिन पैरेलल लाइन में ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करते. हम लोग दोनों साइड में एक्सटेंड कर दे कोई भी लाइन. सपोज ये PQ लाइन हमने एक्सटेंड कर दी आगे, उसी तरह RS यदि हम लोग एक्सटेंड कर दे, कितना भी एक्सटेंड कीजिए, तो दिस टू लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट एनीवेयर. प्लेन में कहीं पे भी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी. सच लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस. तो ये पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन है. पैरेलल लाइंस मींस if two lines does not intersect anywhere in a plane, such lines are called parallel lines. Or intersecting line means if two lines are intersect each other at a single point, yeah, if they have a common point, such lines are called intersecting line. Okay. Now pair of angles we already studied: adjacent angle, linear pair angles. Okay. Now in the you have learned the definition of sub pair of angles such as complementary angle हमने देखा है, supplementary angle देखा है, adjacent angle, linear pair angles.
ये इसका स्टडी हमने प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं. कैन यू थिंक ऑफ सम रिलेशन बिटवीन दिस एंगल? तो ये जो एंगल है उसमें रिलेशन होता है, ये आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा होगा. सो अभी हम लोग सोचने जा रहे हैं. लेट अस फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द एंगल फॉर्म व्हेन रे स्टैंड ऑन द लाइन. यदि कोई भी रे जो है एक लाइन के ऊपर स्टैंडिंग है, तो वो वहां पे जो दो एंगल बनते हैं उनमें क्या रिलेशन है, ये हम लोग देखने जा रहे हैं. सो इन फिगर, सी हियर फिगर, रे ड्रॉ रे इन विच रे स्टैंड ऑन द लाइन एज शोन इन फिगर. आपकी ये लाइन ए बी है. ओके, लाइन ए ओ बी है. इस लाइन के ऊपर यदि ये रे ओ सी स्टैंड कर रहा है, ओ सी स्टैंडिंग. नाउ द लाइन ए बी, line as AB and ray OC. What is the angle formed at point O? तो यहाँ पे ये रे स्टैंड करने के बाद ये यहाँ पे O पॉइंट के पास हमें दो एंगल मिल रहे. ओके, एंगल दिखाई दे रहा है आप लोगों को. तो व्हाट आर द एंगल्स फॉर्म एट पॉइंट O? O पॉइंट के पास कौन से एंगल बन रहे? तो पहला आपका बनता है एंगल AOC. दिस इज एंगल AOC. सेकंड इज एंगल और BOC and third is the angle AOB, totally angle AOB. Okay, so on the line AB, if ray OC is standing, then at point AO here we get three angles. One is your angle AOC, second is the angle your BOC, and third is totally angle AOB. यानी कि straight angle, तीन एंगल बनते हैं. Okay, angle AOB is your straight angle. So we get three angles. Now see, we can write here एंगल AOC. ये देखिए यहाँ पे आपका जो एंगल AOC है, दिस एंगल AOC, और उसमें एंगल ये BO से ऐड करते हैं तो वी गेट टोटल एंगल AOB. एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज नथिंग बट एंगल AOB. वी कैन डिनोट दिस बाय इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये दोनों जो एंगल है सेम स्ट्रेट लाइन में, तो उनका दोनों का जोड़ जो है वो टोटल एंगल है AOB. नाउ व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB? अभी फिगर में देखिए ये जो एंगल AOB आपका AOB, ये एंगल उसको किस टाइप का एंगल बोलते हैं हम लोग? हमने प्रीवियस सेशन में देखा है कि दिस एंगल इज योर स्ट्रेट एंगल. एंगल AOB इज अ स्ट्रेट एंगल एंड वी नो दैट व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेट एंगल? मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री. और ये स्ट्रेट एंगल है, इसका मतलब एंगल AOB का मेजरमेंट कितना होगा? 180 degree. So we get angle AOB is 180 degree because angle AOB is a straight angle and measurement of straight angle is 180 degree. So we get here angle AOB is 180 degree denoted by equation 2. Now put the value of angle AOB is 180 degree in equation 2. Sorry, in equation 1. From equation 2, put the value in equation 1. Or from equation 1 and 2 we can also say. तो put करने के बाद क्या होगा? This become what? Angle AOC plus angle BOC is equal to AOB, but AOB is 180. So we get here angle AOC plus angle BOC is equal to 180 degree. तो हमें यहाँ पे मिल जाता है एंगल AOC प्लस एंगल BOC या COB भी बोल सकते हैं हम लोग, BOC या COB इज इक्वल टू वी गेट 180 डिग्री. तो यहाँ पे जो एंगल AOC और BOC इनका जोड़ हमें मिल जाता है 180 डिग्री. But here, these two angles, see in figure, these two adjacent angle are a angle in linear pair. लेकिन ये दोनों एंगल कैसे लीनियर पेयर है? एडिशन एंगल भी है और लीनियर पेयर भी है. करेक्ट. तो इनका जोड़ जो लीनियर पेयर है, क्योंकि लीनियर पेयर क्यों है? क्योंकि उनकी जो अनकॉमन आर्म है OA और OB फॉर्म लाइन. सो दिस टू एंगल्स आर लीनियर पेयर. तो ये दोनों लीनियर पेयर है, लेकिन उनका जोड़ कितना है? 180. तो इससे हम बोल सकते हैं कि इनका दोनों का जोड़ 180 होता है. सो एंगल इन लीनियर पेयर इज 180 डिग्री. जो एंगल लीनियर पेयर में होते हैं उनका जोड़ होता है 180 डिग्री. सो इन दिस वे वी गेट हियर एग्जाम. यूजिंग दिस स्टडी वी विल सी हियर एग्जाम. क्या एग्जाम है? if ray stand on the line, then the sum of two adjacent angle form is 180. यदि कोई भी लाइन के ऊपर कोई भी लाइन है आपका, ये सपोज हम लोग इस लाइन को L नाम दे सकते हैं, या यहाँ पे इस लाइन को हम लोग PQ भी बोल सकते हैं. ओके, इस लाइन के ऊपर कोई भी रे यदि स्टैंडिंग करता है एट पॉइंट O,
तो यहाँ पे ये जो दो एडजेसेंट एंगल मिल रहे हैं, यहाँ पे सपोज आर पॉइंट नाम दिया है, तो यहाँ पे कौन से दो एडजेसेंट एंगल है? योर फर्स्ट एंगल इज एंगल पी ओ आर, सेकंड इज एंगल आर ओ क्यू। तो ये दो एडजेसेंट एंगल, उनका जोड़ होता है 180 डिग्री, यानी कि एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये एग्जाम का यूज हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करते समय करेंगे। तो ये एग्जाम क्या है? यदि कोई भी लाइन के ऊपर यदि कोई भी रे स्टैंड करता है, तो रे स्टैंड करने के बाद यहाँ पे ये जो दो एडजेसेंट एंगल मिलते हैं, ये दोनों एडजेसेंट एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो दिस इज योर एग्जाम। इफ रे स्टैंड ऑन द लाइन, then the sum of adjacent angle form is 180 डिग्री। तो वहां पे जो एडिशन एंगल बनते हैं उनका जोड़ होता है 180 डिग्री। इफ रे स्टैंड ऑन लाइन, then the sum of two adjacent angles so form is 180 degree. Now recall that the sum of two adjacent angle is उसका converse. If the sum of two adjacent angle is 180 degree, then the angle are called linear angle. इसका मतलब, और वो दोनों adjacent angle क्या है? linear angle है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि sum of angles in linear pair is 180 degree, और उसका converse बोलेंगे if sum of the two adjacent angle is 180 degree, then the angles are angles in linear pair. यदि दो एडिशन एंगल का जोड़ यदि 180 डिग्री है, तो वो दो एंगल किस टाइप के होते हैं? एंगल्स इन लीनियर पेयर में होते हैं। ओके, कोई भी दो एंगल, दो एडिशन एंगल का जोड़, कोई भी दो एंगल का जोड़ नहीं, कोई भी दो एंगल का जोड़ यदि 180 तो उसको बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री। लेकिन ऐसे जो दो एडजेसेंट एंगल, दोनों कैसे होना चाहिए? एडिशन, और उनका जोड़ 180 है, तब वो दोनों एंगल होते हैं एंगल इन लीनियर पेयर। ओके, तो इसका यूज करेंगे। नाउ सी इन फिगर, यहाँ पे अभी ये फिगर में देखिए, ये एंगल, ये आपकी लाइन है AOB, और यहाँ पे ये रे स्टैंड किया है OC। रे स्टैंड करने के बाद यहाँ पे दो एडिशन एंगल मिल गए। उसमें से ये पहला एडिशन एंगल जो है आपका AOC, वो 125 डिग्री का है। दूसरा एडिशन एंगल COB आपका 55 है। इनका दोनों का जोड़ करते हैं हम लोग, 125 प्लस 55 कितना होता है जोड़? दिस इज 180। इसका मतलब ये दोनों एडिशन एंगल का जोड़ 180 है। तो दोनों का जोड़ एडिशन एंगल का जोड़ 180 है। सो दैट मींस दिस टू एंगल्स आर इन linear pair. So angle AOC and angle BOC both are in linear pair. Again, in a figure, both the non-common arm, यहाँ पे देखिए ये जो non-common arm है, non-common arm lie along the rule, along the rule, ये rule के ऊपर है। इसका मतलब दे फॉर्म लाइन। इसका मतलब ये जो अनकॉमन आर्म है OA और OB, ये क्या बना रही है? लाइन बना रही है, या उसको हम लोग अपोजिट रे भी बोलते हैं। ओके, दैट इज एट पॉइंट, okay, both the non-common arm lies along the rule, that is the point AOB lies on the same line. इसका मतलब ये पॉइंट A, O और B एक ही लाइन के ऊपर है। ओके, lies on the same line. एंड रे OC, ये जो रे OC स्टैंड ऑन इट, और रे OC वो लाइन के ऊपर है, स्टैंडिंग कर रहा है। ऑल्सो सी दैट एंगल AOC प्लस एंगल COB, अभी एंगल AOC प्लस COB इनका जोड़ यदि हम लोग कंसिडर करते हैं, नाउ your angle AOC is 125 डिग्री, एंगल BOC is your 55 डिग्री, इनका जो जोड़ आता है 180। सो फ्रॉम दिस वी मे कंक्लूड दैट, तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? तो कंक्लूड इज व्हाट? इफ द सम ऑफ द टू एडिशन एंगल इज 180 डिग्री, यदि दो एडिशन एंगल का जोड़ 180 है, देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल फॉर्म लाइन। तब ये जो नॉन कॉमन आर्म है OA और OC OB, ये क्या करते हैं? लाइन बना दिए। ओके, अगेन रिपीट हियर, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? इफ सम ऑफ द टू एडिशन, अभी फिगर में देखिए यहाँ पे ये आपका एंगल AOC और एंगल BOC, इनका दोनों का जोड़ आपका 180 डिग्री, दोनों का जोड़ 180 आता है, हमने देखा है। यदि ये दोनों एडिशन एंगल का जोड़ यदि 180 है, तो उनकी अनकॉमन आर्म, पहला आपका एंगल AOC, उसकी अनकॉमन आर्म क्या है? OA, और दूसरा एंगल BOC, उसके अनकॉमन आर्म है OB। ये दोनों क्या बनाती है? स्ट्रेट लाइन बनाती है, लाइन बनाती है, फॉर्म अ लाइन। सो अनकॉमन आर्म फॉर्म अ लाइन, दैट मींस दिस टू एंगल्स आर इन लीनियर पेयर। इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या है? लीनियर पेयर में। तो इसे द टू एग्जाम्स अबाउट टुगेदर इज कॉल्ड एंगल्स इन लीनियर पेयर और लीनियर पेयर एग्जाम। दिस एग्जाम, ये दोनों जो एग्जाम है, ये
और ये दोनों को लीनियर पेयर एग्जाम बोलते हैं। तो दिस आर द लीनियर पेयर एग्जाम। तो लीनियर पेयर एग्जाम पहला है, इफ रे स्टैंड ऑन द लाइन देन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल फॉर्म इज 180। पहला एग्जाम है, यदि कोई भी रे लाइन के ऊपर स्टैंड करता है तो यहाँ पे ये जो दोनों एंगल बन जाता है, ओके, ये दोनों एडजेसेंट एंगल का जोड़ होता है 180 डिग्री। कोई भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर रे स्टैंड करता है तब यहाँ पे जो दो एडजेसेंट एंगल बन जाते हैं उनका जोड़ होता है 180। सपोज ये एंगल ये बी है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इफ रे स्टैंड ऑन द लाइन then sum of the adjacent angle is 180 degree. This is the first exam. Second exam is if the sum of adjacent, यहाँ पे ये दो adjacent angle है और इनका जोड़ सपोज 180 डिग्री है। सपोज ये एंगल पी है और ये क्यू है, हमें दिया गया है कि P प्लस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तब ये दोनों एंगल के अनकॉमन आर्म ये और ये लाइन बनाते हैं। दिस बिकेम अ लाइन। सो दिस आर कॉल्ड द एग्जाम्स ऑफ लीनियर पेयर या लीनियर पेयर एग्जाम। ओके, तो फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू स्टडी important theorem. We already seen what is meant by opposite angles. Opposite angle क्या होता है ये हमने देखा है। तो उसके ऊपर हम लोग एक थ्योरम देखने जा रहे हैं। तो यदि इफ वी ड्रॉ टू इंटरसेक्टिंग लाइन, यदि दो इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ करता है तो यहाँ पे जो आपका एंगल है AOD और यहाँ पे एंगल है आपका COB या BOC, ये दोनों को हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये हमने ऑलरेडी देखा है, क्योंकि उसके जो आर्म है वो आर्म जो है दो लाइन बनाते हैं, दो पेयर ऑफ अपोजिट रे बनाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं अपोजिट। तो ये दोनों अपोजिट एंगल है और यदि हम लोग उनका मेजरमेंट लेते तो वो दोनों सेम आता है और इसका मतलब अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये थ्योरम हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। तो योर थ्योरम इज व्हाट, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यदि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये जो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल ये एक है और इधर ये दूसरी पेयर है, वो दोनों इक्वल होते, ये हमें शो करना है, प्रूव करना है। ओके, तो हमें दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन दी गई थी। तो हमें ये दो लाइन दी गई, सपोज ये हम लोग ये कोई भी थ्योरम का प्रूफ लिखना है तो वो सिस्टमेटिकली लिखना है। तो स्टेप उसकी होती है, पहली स्टेप होती है गिवन, हमें क्या दिया गया है, उसके बाद उसके अनुसार फिगर ड्रॉ करना है। फिगर ड्रॉ करने के बाद उसमें हमें क्या प्रूव करना है, यानी कि टू प्रूव, और उसके बाद प्रूफ और बाद में रिजल्ट। इसी तरह हम लोग यदि स्टेप बाय स्टेप कोई भी थ्योरम स्टेप बाय स्टेप इसी तरह लिखते हैं तो हमें उसमें फुल मार्क्स मिल जाता है। और एग्जाम में हमेशा थ्योरम आता है 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो इसी तरह हम लोग स्टेप बाय स्टेप वी आर गोइंग टू स्टडी दिस थ्योरम, प्रूफ ऑफ द थ्योरम स्टेप बाय स्टेप। तो योर फर्स्ट स्टेप इज राइट डाउन गिवन। गिवन मीन्स अकॉर्डिंग टू थ्योरम स्टेटमेंट और अकॉर्डिंग टू फिगर वी हैव टू राइट गिवन। तो हमें टू लाइंस दी गई थी और एक दूसरे को वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और वहां पे पेयर ऑफ अपोजिट एंगल मिल रहे। तो ये हम लोग गिवन में लिखेंगे। तो गिवन में कौन से दो लाइन है, फिगर में ड्रॉ किया हमने, AB और CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ओके, यानी कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट O। देन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से बन रहे, पहली पेयर बन रही है आपके एंगल AOC और एंगल BOD। AOC ये और आपकी BOD ये वन पेयर, एंड सेकंड पेयर इज आपकी AOD इधर वाला और BOC, ये दो पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल हमें मिल रहे हैं। ओके, तो ये हमने गिवन में लिखना है, फिगर उसी के अनुसार ये ड्रॉ करना है। अभी हमें क्या प्रूव करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमने ऑलरेडी बोला है कि ये एक पेयर है और एक दूसरी पेयर है। एंगल AOC BOD एक पेयर है, दूसरी AOD और BOC ये दूसरी पेयर है, ये हमें दोनों इक्वल दिखाना है। दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव हियर एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD एंड एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, ये हमें शो करना है, प्रूव करना है। So how to prove it? Now we will prove this theorem by using the your linear pair exam. तो हम लोग यहाँ पे ये प्रूव करने के लिए वो एग्जाम का यूज करना है। तो एग्जाम का यूज करेंगे हम लोग। सी हियर योर CD इज अ लाइन, यहाँ पे ये CD आपकी क्या है, लाइन है, और उसके ऊपर ये रे OA स्टैंड कर रहा है। रे OA स्टैंड करने के बाद यहाँ पे जो दो एडजेसेंट एंगल है उनका जोड़ कितना होता है,
180 यूजिंग दिस एग्जाम वो यूज करेंगे हम लोग. सो रे ओ इज स्टैंडिंग ऑन लाइन सी डी. फिगर में दिखाई दे रहे आप लोगों को, फिर से देखिए कि ये जो रे ओ ए वो कौन सी लाइन की सी डी जो लाइन है आपकी उसके ऊपर ये रे ओ ए स्टैंड कर रहा है. तब ये जो दो एडिशन एंगल है यानी कि एंगल एओ सी या सीओ ए भी बोल सकते हैं आप लोग, एंड एंगल एओ डी, ये दोनों एडिशन एंगल है तो उनका जोड़ कितना होगा 180. सो यूजिंग दिस लीनियर पेयर एग्जाम वी गेट एंगल एओसी प्लस एंगल एओडी इज इक्वल टू 180. ये दो एडिशन एंगल का जोड़ 180. ये लीनियर पेयर एग्जाम का यूज किया, डिनोटेड बाय इक्वेशन 1. ओके, नाउ सिमिलरली उसी तरह देखिए, अभी ये आपकी ए ओ बी लाइन है और उसके ऊपर ये ओ डी रे स्टैंड कर रहा है. रे ओ डी स्टैंड करने के बाद यहाँ पे ये दो एडिशन एंगल मिल रहे हैं तो उनका भी जोड़ कितना होगा 180. तो सिमिलरली क्या मिलेगा, एंगल एओडी, आपका ये एंगल एओडी प्लस एंगल बीओडी, ये बीओडी, ये दोनों एडिशन उनका भी जोड़ 180 बाय यूजिंग लीनियर पेयर एग्जाम, डिनोटेड बाय इक्वेशन नंबर 2. इसको हमने 2 से डिनोट कर दिया. तो यहाँ पे हमें इक्वेशन 1 और 2 मिल जाता है. नाउ सी इक्वेशन 1 एंड 2, देयर राइट साइड्स आर इक्वल. दोनों का राइट साइड 180 180 आपने दिखाई दे रहा है, 180 180. तो इसका मतलब राइट साइड इक्वल है. तो राइट साइड इक्वल है तो ऑटोमेटिकली उनका लेफ्ट साइड क्या होगा, इक्वल होगा. सो दैट मीन्स व्हाट, एंगल एओसी प्लस एंगल एओडी इज इक्वल टू एंगल एओडी प्लस एंगल बीओडी हमें मिल जाता है. सो राइट साइड ऑफ equation 1 and 2 are equal, so their left side are equal. So left side means from this equation angle AOC plus angle AOD is equal to angle AOD plus angle BOD. ये हमें मिल गया, राइट साइड दोनों की इक्वल मिल गई. नाउ सी इन दिस इक्वेशन एंगल AOD दोनों साइड में, एंड सेम थिंग हम लोग कैंसिल कर सकते हैं. सो कैंसिल सेम थिंग फ्रॉम बोथ साइड, एंगल AOD कैंसिल करने के बाद हमें मिल जाता है एंगल एओसी, ये आपका बच जाता है एओसी और राइट साइड में एंगल बीओडी. सो वी गेट एंगल एओसी इज इक्वल टू एंगल बीओडी. सो वी गेट एंगल एओसी इज इक्वल टू एंगल बीओडी. बट दिस इज अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल. सो ये एक पेयर अपोजिट एंगल की हमें इक्वल मिल गई. जैसा हमने एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल प्रूव किया उसी तरह हम लोग दूसरा भी कर सकते हैं, बट नो नीड टू राइट ईच एंड एवरीथिंग. वी कैन राइट डायरेक्टली सिमिलरली, बिकॉज आपको ये आता है तो ये भी प्रूव कर सकते हैं. तो दूसरा आप लोग सिमिलरली करके लिखना है. सिमिलरली वी गेट एंगल एओडी इज इक्वल टू एंगल बीओसी. तो उसी तरह ये पहला पेयर आपको एओसी और पहला जो पेयर है आपको मिला था एओसी ये एंगल एओसी इज इक्वल टू एंगल बीओडी, यानी कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हमने प्रूव किया. तो दूसरा सिमिलरली करके दूसरा जो पेयर है वो भी इक्वल है, एंगल एओडी इज इक्वल टू एंगल बीओसी. सो वी गेट प्रूफ हियर एंगल एओडी इज इक्वल टू एंगल बीओसी. तो वी गेट हियर दिस पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो इससे हमें मिल जाता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है. तो वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट. तो रिजल्ट के फॉर्म में किसी तरह लिखना है, ये स्टेटमेंट लिखना है, if two lines intersect each other at each other then vertically opposite angles are equal. So in this way we will prove any theorem. Okay, if you have any doubt then ask me on my WhatsApp number. Now using this exams we are going to study example based on this topic, that is your exercise. Okay, so your first example is इन फिगर ऑलरेडी दी गई है. इस फिगर में बोला है लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग एट ओ. ए बी और सी डी दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को वोट पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है. ये लाइन ए बी और दूसरी लाइन सी डी, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ. और हमें दिया गया है एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ इज 70 डिग्री. ए ओ सी ये एंगल आपका ए ओ सी है और दूसरा एंगल बी ओ ई ये दोनों का जोड़ हमें दिया गया है 70 डिग्री. ओके, एंड एंगल बीओडी इज 40 डिग्री और यहाँ पे ये जो एंगल आपका बीओडी वो आपका 40 डिग्री का है. देन फाइंड एंगल बीओई, ये टोटल ये बड़ा जो एंगल बीओई हमें फाइंड आउट करना है. उसके बाद में रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सीओई का रिफ्लेक्स एंगल सीओई देखिए, सीओई आपका ये एंगल है, उसका रिफ्लेक्स एंगल ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो हाउ टू फाइंड इट, वेरी इजी प्रॉब्लम.
we will solve it by using the exams of linear pair. Okay, now see, we are going to solve it. Now AB is a straight line. देखिए यहाँ पे ये भी हमें ये स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, ये भी आपकी स्ट्रेट लाइन है. ओके, और रे ओ सी उसके ऊपर स्टैंड किया है, रे ओ सी उसी तरह रे ओ ए भी स्टैंड किया है ऑन इट. ओके, तो स्टैंड करने के बाद एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ इज 180. तो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन में तीन एंगल है, ये तीनों एंगल सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, एओबी के ऊपर है. और स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल होते हैं उनका सभी का जोड़ 180 होता है, क्योंकि स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट 180 है, तो उसमें जितने भी एंगल उनका जोड़ 180 है. तो यूजिंग दिस एग्जाम, दिस एंगल एओसी प्लस एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई, ये तीनों एंगल का जोड़ 180 मिल जाता है. ओके, तो वी गेट हियर दिस. नाउ दिस एंगल एओसी एज इट, एंगल एओसी एज इट, एओसी हमने एज इट लिखा है, एंगल बीओई इज एज इट, और सीओई बाद में लिखा है इज इक्वल टू 180. नाउ बट हमें ये दोनों एंगल का जोड़ दिया है 70 डिग्री. हमें ऑलरेडी दिया गया कि एओसी और बीओई इनका जोड़ 70 डिग्री. ये हमने पहले क्या किया, यहाँ पे ग्रुप बना दिया, ये दोनों एंगल का ग्रुप बना लिया, क्योंकि उनका जोड़ हमें 70 दिया था, तो हमने एक ब्रैकेट में पहले एओसी प्लस बीओई ले लिया और बाद में एंगल सीओई लिखा इज इक्वल टू 180. लेकिन हमें ये दो एंगल का जोड़ 70 दिया है, पुट दिस वैल्यू हियर 70. सो 70 प्लस एंगल सीओई इज एज इट इज इक्वल टू 180, राइट साइड एज इट. Now transfer this 70 from left side to right side, it become minus. So angle COE is equal to 180 minus 70, and 180 minus 7 is 110. So we get angle COE. COE ये जो एंगल है आपका मिल जाता है 110 डिग्री का. So we get angle COE is a 110 डिग्री. Now अभी ये हमें उसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, COE का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है. तो हमें पता है कि ये एंगल और उसका रिफ्लेक्स एंगल, ये दोनों का जोड़ होता है 360 डिग्री. करेक्ट, दोनों का जोड़, बिकॉज बोथ एंगल्स लाइज ऑन द सेम पॉइंट में जो एंगल होते हैं उनका जोड़ होता है 360. तो आपका ये एंगल सीओई और उसका रिफ्लेक्स एंगल, ये दोनों जो एक पॉइंट के पास है, इसलिए उनका जोड़ होता है 360 डिग्री. तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें 360 में से ये जो ये एंगल जो है वो एंगल क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है. सो रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सीओ इज 360 माइनस इसका मेजरमेंट 110, and that is we get 250. So we get reflex angle of CO is 250 डिग्री. तो हमें ये जो रिफ्लेक्स एंगल है वो मिल जाता है 250 डिग्री का. ओके, हाँ, तो आपको रिफ्लेक्स एंगल सीओ मिल गया. अभी हमें एंगल बीओई निकालना है, ये एंगल निकालना है. ओके, नाउ हाउ टू फाइंड इट. नाउ सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन. सी डी देखिए, ये सी डी आपका स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर ये ओ ई और ओ बी रे स्टैंड कर रहे हैं. तो स्टैंड करने के कारण यहाँ पे जो तीन एंगल है, ये तीनों एंगल का जोड़ कितना होगा, 180. सो एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180. और उसमें हमें जो एंगल पता है वो पुट करना है. एंगल सी ओ ई हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, सी ओ ई आपका 110 डिग्री, पुट 110. बी ओ ई हमें फाइंड आउट करना है, बी ओ डी ऑलरेडी दिया गया था 40 डिग्री, पुट दिस वैल्यू 40 इज इक्वल टू राइट साइड 180. नाउ बी ओ ई इज इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों एंगल जो है 110 और 40 डिग्री उधर ट्रांसफर करना है. 150 और 40 इनका जोड़ होता है 150, तो 150 राइट साइड में ट्रांसफर करते तो क्या होगा, माइनस होगा. सो वी गेट एंगल बी ओ इज 180 माइनस 150 एंड दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री. So we get angle BO is 30 degree. Hence we get angle BO is 30 degree and replace angle of COE. COE is 250 degree. तो यहाँ पे हमें ये दो आंसर मिल गए. Replace angle COE is 250 degree and angle BO is 30 degree. So in this way we get the answer. Correct? So friends, in this way we will solve the remaining example based on this topic next time. If you have any doubt, then ask me on my WhatsApp number 9420439784. Okay friends, thank you. Have a nice day. Goodbye.